જેમ ડગલે ને પગલે પૈસાની જરૂર પડે છે, પૈસા વગર કોઈ કામ થતું નથી, એમ આત્મામાં એ ડગલે ને પગલે પુરુષાર્થની જરૂર પડે છે. એ આપણો જે આ અનાદિકાળનો ભવભ્રમણ છે, એ ભવભ્રમણનો અંત લાવવા માટે એકમાત્ર ઉપાય આપણો આત્માનો સ્વસન્મુખતાનો પુરુષાર્થ છે. કોઈ પણ જીવનો પુરુષાર્થ વિના ભવનો અંત થતો નથી. વસ્તુનું પામવું, વસ્તુનું ટકવું, વસ્તુમાં આગળ વધવું, એ બધું પુરુષાર્થથી જ પ્રવર્તે છે. આત્માની રુચિથી માંડી અને કેવળ જ્ઞાન સુધી દરેક સમયે પુરુષાર્થનું જ પ્રયોજન હોય છે. જો આપણને પુરુષાર્થ કરવાની પર સૂજી જાય, પુરુષાર્થના સાચા પ્રવર્તનની દિશા મળી જાય, તો માર્ગની મૂંઝવણ મટી જાય અને આપણે મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ પામી અને મોક્ષ દશા સુધીની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ. જે આપણો આત્મા છે, સુખનું ધામ છે, આશ્ચર્યકારી નિધિ છે, અનંત ગુણોનું નિધાન છે, એ બધાની પ્રાપ્તિ આત્માના પુરુષાર્થથી જ પ્રવર્તન થાય છે. આપણને એમ થાય કે કોઈ પણ કાર્યના 5 કારણો હોય છે. આ 5 કારણોના સમુદાયને 5 સમવાય કહેવામાં આવે છે. ખરેખર 5 સમવાયથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. તો પછી આ પુરુષાર્થની પ્રમુખતા, પુરુષાર્થની મુખ્યતા, પુરુષાર્થની અગત્યતા કઈ રીતે છે, એ વાત આપણે સમજવી છે. એ શાસ્ત્રમાં પણ કહ્યું છે કે પદ સ્વભાવ પૂર્ણ ઉદે નિહજે ઉદ્યમ કાળ પક્ષપાત મિથ્યાત્વ પદ સર્વાંગી શિવચાર. પદ સ્વભાવ, પદાર્થનો સ્વભાવ, પૂર્વ ઉદય, પૂર્વ કર્મનો ઉદય જેને નિમિત્ત કહેવાય, નિયત એટલે નિયતિ, ભવિતવ્યો, ક્રમબદ્ધ પર્યાય, એને નિયતિ કહેવાય. ઉદ્યમ એટલે પુરુષાર્થ, કાળ એટલે કાળલબ્ધિ. પદ સ્વભાવ પૂર્વ ઉદય નિહજે ઉદ્યમ કાળ પક્ષપાત મિથ્યાત્વ પદ. એમાંથી કોઈ એકનો પક્ષપાત રાખવો એ મિથ્યાત્વ છે. સર્વાંગી શિવચાર, એ બધાના સમુદાયથી, બધાના સુમેળથી શિવચાર એટલે મોક્ષનો માર્ગ હોય છે. એટલે કોઈ પણ કાર્ય જે થાય છે, એ કાર્યમાં 5 કારણોનો સમુદાય હોય છે. હવે આ 5 કારણોના સમુદાય હોવા છતાં એ 5 સમવાયમાં પુરુષાર્થની જ મુખ્યતા છે. એ કઈ રીતે છે, એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. એ વાસ્તવમાં તો 5 કારણોથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. જે અન્ય મતના લોકો છે, એ ગુમરસારમાં પણ કહ્યું છે કે ઘણા લોકો સ્વભાવવાદી હોય છે, કેટલાક નિમિત્તવાદી હોય છે,
કેટલાક નિયતિવાદી હોય છે, કેટલાક કાળવાદી હોય છે, કેટલાક ઉદ્યમવાદી એટલે પુરુષાર્થવાદી હોય છે. તો એ બધા જ મિથ્યાત્વવાળા છે. એકાંતે કોઈ પણ એકનો પક્ષપાત રાખવો એ મિથ્યાત્વ છે. ખરેખર તો પાંચેયના સમુદાયથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. પણ આ પાંચેયના સમુદાયથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી હોવા છતાં કાર્યનું નિયામક બળ આપણે આ પાંચેયમાં જે સ્વાધીન હોય, અંતરંગ કારણ હોય, નિશ્ચિત કારણ હોય, ઉપાદાન કારણ હોય, વાસ્તવિક કારણ હોય અને કાર્યનું નિયામક કારણ હોય, તો એ પુરુષાર્થ જ હોય છે. પુરુષાર્થનું પ્રવર્તન હોય તો બાકીના કારણો હોય જ છે, અને બાકીના કારણો હોય પણ પુરુષાર્થ ન હોય તો કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી જ નથી. આપણો પુરુષાર્થ સ્વાધીન પણ છે અને સફળ પણ છે. આપણા કંટ્રોલમાં આપણો પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ આપણી શક્તિ છે. એ સ્વરૂપ નિવર્તન સામર્થ્ય રૂપા વીર્ય શક્તિ એટલે પુરુષાર્થ પોતાના સ્વરૂપની રચના કરે, પોતાના પરિણામોનું પ્રવર્તન કરે એ પુરુષાર્થ છે. જેમ અસ્તિત્વ ગુણથી આપણો આત્મા ટકે છે, એમ પુરુષાર્થ ગુણથી, વીર્ય ગુણથી પલટે છે. પોતાના સ્વભાવથી ટકે છે, સ્વભાવથી પલટે છે. પણ આ પલટવામાં એ પુરુષાર્થ ઉપરાંત બાકીના 4 કારણોની ઉપસ્થિતિ હોય છે. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે પાંચેય કારણો, પુરુષાર્થ સહિતના પાંચેય કારણો સમાન કક્ષાના છે. પુરુષાર્થની કક્ષા ઊંચી જ છે. પુરુષાર્થની જ મુખ્યતા છે. પુરુષાર્થની જ પ્રમુખતા છે. પુરુષાર્થ જ કાર્યનું નિયામક છે. તો આપણો પુરુષાર્થ સ્વાધીન છે, આપણો પુરુષાર્થ સફળ પણ છે. આપણે જે કાંઈ પુરુષાર્થ કરીએ છીએ એ કોઈ દિવસ નિષ્ફળ જતો નથી. આપણને એમ થાય કે અમે પૈસા કમાવાનો પુરુષાર્થ કરીએ છીએ પણ ન કમાવાનો, નિષ્ફળ ગયો. શરીરનો રોગ મટાડવાનો પુરુષાર્થ કર્યો પણ શરીરનો રોગ ન મટ્યો, તો પુરુષાર્થની સફળતા કઈ રીતે થાય? તો હવે એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે કે આ પુરુષાર્થ શું છે અને પુરુષાર્થ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. એક પ્રશ્ન છે, તમે કીધું પુરુષાર્થ સ્વાધીન છે, સ્વતંત્ર છે, તો બાકીના 4 અન્વય આદિ છે, પુરુષાર્થને આદિ છે, એ પુરુષાર્થને લીધે એને લાવી શકાય ગમે ત્યારે કે પછી એની રાહ જોવી જ પડી જ્યાં 4 અન્વયની કોઈ કાર્ય થાય? એટલે તમારો પ્રશ્ન બહુ વ્યાજબી છે. પુરુષાર્થ સ્વાધીન છે ને બાકીના 4 પરાધીન છે. પુરુષાર્થ અંતરંગ છે, બાકીના 4 બહિરંગ છે. પુરુષાર્થ ઉપાદાન કારણ છે, બાકીના 4 ઉપચરિત કારણ છે. પુરુષાર્થ નિશ્ચય કારણ છે, બાકીના 4 વ્યવહાર કારણ છે. પુરુષાર્થ કાર્યનું નિયામક કારણ છે, બાકીના 4 કાર્યના અનિયામક છે, નિયામક નથી. હવે આ વસ્તુ આપણે ક્રમશર એક પછી એક મુદ્દાસર સમજીએ છીએ. તમને એનો ઉત્તર મળશે, કદાચ ન મળે તો તમે પાછું મને પૂછજો. એટલે જે તમે વાત કરીને આપણે અત્યારે શું થાય છે એના હું એમ એક કામ કરું, ઊંઘો થઈ જાવ, વધારે કામ થશે. પણ એમને હું પકડવું, મેં કીધું કે ના ન પકડવું, કે he likes to move around.
જો આપણે આજે એનું પેમ્ફલેટ લેવા હું ભૂલી ગયો છું, પણ એના જે મુદ્દાઓ છે હવે આજે તો આપણે વિષય પૂરો કરવો છે એટલે કંઈ ચાલશે, પણ આપણે સૌથી પહેલા આ રીતે વાત કરીએ છીએ કે પાંચ સમવાય એટલે શું અને તે શા માટે. બીજો મુદ્દો સમર્થ કારણ એટલે શું. ત્રીજો પુરુષાર્થ એટલે શું. પુરુષાર્થના 4 પ્રકાર અને એમાં મોક્ષની ઉપાદેયતા. આ પ્રકારના બધા મુદ્દા છે, 18 મુદ્દા છે આ પુરુષાર્થ સંબંધી. ખરેખર તો આપણે આ પુરુષાર્થનું પ્રકરણ છે. આના પછી સ્વભાવની વાત કરવાની છે, એના પછી નિમિત્તની વાત કરવાની છે, એના પછી નિયતિ એટલે ભવિતવ્યની વાત કરવાની છે, અને એના પછી કાળલબ્ધિ એની વાત કરવાની છે. જો પુરુષાર્થ સિવાયના બાકીના જે કારણો છે ને એ પુરુષાર્થના પ્રતિપાદક અને પુરુષાર્થના પ્રેરક છે. સમજાય છે ને? થોડુંક ઉપર રાખજો, થોડુંક ઉપર. ઠીક, ઉપર. એટલે જે આપણને આજે આ 5 સમવાય છે ને એ કારણ કાર્ય છે, કર્તા કર્મ નથી. આ 5 સમવાય અને પુરુષાર્થ કઈ રીતે કામ કરે છે અને આપણે આપણા પુરુષાર્થનું પ્રવર્તન કઈ રીતે કરી શકીએ એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. તો સૌથી પહેલા આ કારણ કોને કહેવાય? જો આચાર્યદેવે એમ કહ્યું છે કે જીર્ણ વિના જમ ન હોદી તે ચ તસ્સ કારણ. જેના વિના જે ન હોય તેનું તે કારણ કહેવામાં આવે છે. કારણ અનુવિધાયની કાર્યાણી. એ જેના વિના જે ન હોય તે તેનું કારણ હોય છે. જેમ આપણે એ આંબાનું વૃક્ષ છે, આંબાના બીજ વગર ન થાય. કોઈ પણ કાર્ય એના કારણને અનુસરીને થાય. જેના વિના જે ન હોય, જેનાથી જે હોય તેને તેનું કારણ કહેવામાં આવે છે. આવા કારણો 5 છે. સ્વભાવ છે, નિમિત્ત છે, કાળલબ્ધિ છે, ભવિતવ્ય છે અને પુરુષાર્થ છે. 5 કારણોનો સમુદાય, એને 5 સમવાય આપણે કહીએ છીએ. સમવાય એટલે સમુદાય, એનું ગ્રુપ ઓફ 5 રીઝન્સ, એને 5 સમવાય કહેવામાં આવે છે. હવે આ જે 5 સમવાય છે એ કઈ રીતે કામ કરે છે? હવે આ 5 સમવાયથી જ કાર્યની સમર્થતા છે. કેમ કે આ જે પણ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે એ આ 5 સમવાયથી જ થાય છે. આ 5માંથી કોઈ પણ એક કાર્યની ઉપસ્થિતિ ન હોય તો કાર્ય બનતું નથી. આપણે સ્વભાવ હોય, નિમિત્ત હોય, કાળલબ્ધિ હોય, ભવિતવ્ય હોય અને પુરુષાર્થ હોય, 5એયની હાજરી હોય તો જ કાર્ય થાય છે. એ 5એય કારણોથી જ કારણની સમર્થતા બને છે. એના વગર કારણની સમર્થતા બનતી નથી. પણ તેમ છતાં એ 5એય કારણો સમાન કક્ષાના નથી. એ વાત આપણે પછી જોશું. તમે પૂછ્યું ને કે પુરુષાર્થની મુખ્યતા કઈ રીતે છે, એ સ્વાધીન છે અને બીજા પરાધીન કઈ રીતે છે, તે વાત આપણે પછી કરીએ છીએ. તો આ સમર્થ કારણ કોને કહેવાય? કે પ્રતિબંધનો અભાવ અને સમસ્ત સહકારી સામગ્રીઓના સદભાવને સમર્થ કારણ કહેવામાં આવે છે. કાર્યનો કોઈ પ્રતિબંધ કરનારો ન હોય, દ્રવ્યથી, ક્ષેત્રથી, કાળથી કે ભાવથી કોઈ પણ પ્રકારે કાર્યમાં કાંઈ પ્રતિબંધ ન થતો હોય અને સમસ્ત સહકારી સામગ્રીઓનો સદભાવ હોય, એને બધી અનુકૂળતા હોય, સાનુકૂળતા હોય અને એને કોઈ પ્રતિકૂળતા ન હોય તો એને સમર્થ કારણ કહેવામાં આવે છે. કે
એ પ્રતિબંધનો અભાવ અને સમસ્ત સહકારી કારણોના સદભાવને એ સમર્થ કારણ કહેવામાં આવે છે. અને સમર્થ કારણથી જ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે. સમર્થ કારણ વગર કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તો આ કારણો ક્યાં છે? 5 છે. પુરુષાર્થ છે, સ્વભાવ છે, નિમિત્ત છે, કાળલબ્ધિ છે અને ભવિતવ્ય છે. તમે આ દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવનો પ્રતિબંધ કીધો, રાઈટ? એ કેવી રીતે? તમે કોઈ દ્રવ્યમાં બીજા કોઈ દ્રવ્યનો પ્રતિબંધ લેવો તો હોતો નથી. શું છે? આપણે અગાઉ પણ ગઈકાલે પણ વાત કરી હતી કે કોઈ પણ કાર્યમાં દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવનો પ્રભાવ હોય છે. બરાબર ને? તો કોઈ આપણને ઓબ્સ્ટેકલ હોય, કોઈ આપણને અવરોધ કરે, વિરોધ કરે, એને પ્રતિબંધ કહેવામાં આવે છે. તો આપણા પુરુષાર્થના પ્રવર્તનમાં જે આપણું સહકારી હોય એને કોઈ અડચણરૂપ ન હોય, બાધારૂપ ન હોય, નડતર ન હોય, આટખીલી કરનારું ન હોય, તો એનું નામ પ્રતિબંધ. એ પ્રતિબંધ દ્રવ્યથી પણ હોઈ શકે, ક્ષેત્રથી પણ હોઈ શકે, કાળથી પણ હોઈ શકે, ભાવથી પણ હોઈ શકે. ભાવ તો આપણો કોમન છે એટલે આપણે સામાન્ય રીતે દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ એ રીતની વાત કરીએ છીએ. તો એવા કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રતિબંધ ન હોય એટલે આપણામાં જે કંઈ કાર્ય કરવું છે, આપણે ધારો કે સમ્યક દર્શનનો પુરુષાર્થ કરવો છે, તો એ સમ્યક દર્શનના પુરુષાર્થમાં આપણને એ દ્રવ્યનો પ્રતિબંધ ન હોય તો આપણને એ સમ્યક દર્શનનો પુરુષાર્થ કરવા માટે ધર્મ ધ્યાનની એવું સહનન હોય, ક્ષેત્રનો પ્રતિબંધ ન હોય, તો એવા કોઈ ક્ષેત્રનો પણ જે પ્રભાવ હોય એવું ક્ષેત્ર ન હોય, અને કાળનો પ્રતિબંધ ન હોય, ભાવનો પ્રતિબંધ ન હોય, દ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાળ ભાવ બધાની સુવિધા હોય અને સમસ્ત સહકારી સામગ્રીઓનો સદભાવ હોય, તો એને સમર્થ કારણ કહેવામાં આવે છે. અને એ કારણની સમર્થતા 5 સમવાયથી બને છે. એટલે આ 5 સમવાય છે એ પુરુષાર્થના પ્રવર્તનમાં એના સહકારી છે, સહચરી છે, પુરુષાર્થને સપોર્ટ કરનારા છે, પુરુષાર્થના પ્રવર્તનમાં સહાયકારી છે, પુરુષાર્થના પ્રવર્તનમાં એ સાનુકૂળ છે, અને એ કારણોના સદભાવમાં એ કોઈ પણ પ્રતિબંધ પ્રવર્તતો નથી, એ સપોર્ટ કરનારા છે. તો એવા આ 5 કારણો છે. પુરુષાર્થ સિવાયના બાકીના 4 કારણો છે. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે 5 કારણો સમાન કક્ષાના છે. વાસ્તવમાં તો એક કાર્યનું કારણ એક જ હોય છે. એક કાર્યના 5 કારણો ન હોય. એક કાર્યનું કારણ એક જ હોય અને એ કારણ પુરુષાર્થ જ છે. બાકીના ગુણ છે ને એ હા, બાકીના ગુણ પાંચે હોય ખરા. આપણે એમ કહીએ કે નિમિત્ત ન હોય ને કામ થઈ જાય, તો એમ પણ ન થાય. તો 5 હોય તો ખરા, પણ તેમ છતાં એ 5ની શું ભૂમિકા છે એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. અને એ સમજવાથી આપણા પુરુષાર્થનું પ્રવર્તન કઈ રીતે થઈ શકે, આપણા પુરુષાર્થની શું ભૂમિકા છે, આપણે પુરુષાર્થ કઈ રીતે એપ્લાય કરી શકીએ, પુરુષાર્થનો પ્રયોગ કઈ રીતે થાય, એ વસ્તુ આપણે સમજવાની છે. આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે, પુરુષાર્થ આપણો સ્વભાવ છે. આપણે એક પછી એક વાત કરીએ છીએ એટલે ઓવરપાસ ન થઈ જાય. સૌથી પહેલા તો આપણે પુરુષાર્થ એટલે શું, આમાં મુદ્દાસર આપણે વાત કરીએ છીએ. તો જો એ આપણું પુરુષાર્થ સિદ્ધિ ઉપાય નામનું શાસ્ત્ર પણ છે, અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવનું. તેમાં એ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ, સફળતા એનો ઉપાય આચાર્ય દેવે બતાવ્યો છે. એની 9મી ગાથામાં પુરુષાર્થનો અર્થ કરેલો છે. તેમાં શું કહ્યું છે કે પુરુષાર્થ એટલે શું, તો એ આ શબ્દાર્થ પ્રમાણે પુરુષનો આપણે પુરુષાર્થનો અર્થ કરીએ તો એમાં
સૌથી પહેલા તો પુરુષેતિ ઇતિ પુરુષ એનું વ્યુત્પત્તિ પ્રમાણે પુરુષેતિ પુરુ એટલે ઉત્તમ ગુણો, સેતે એટલે સેવન કરે, જે ઉત્તમ ગુણોનું સેવન કરે એને પુરુષ કહેવામાં આવે છે. તો આપણો આત્મા ઉત્તમ ચેતના ગુણોનું સેવન કરનારો છે, તો એટલે એને પુરુષ કહેવામાં છે. એટલે પુરુષ ચિદાત્મા અસ્તિ એમ આચાર્ય દેવે કહ્યું છે કે જે ઉત્તમ ચેતના ગુણનું સેવન કરનારો છે, ઉત્તમ ચેતના ગુણનો સ્વામી છે, ઉત્તમ ચેતના ગુણોના અધિષ્ઠાતા છે, તો એને પુરુષ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા પુરુષનો પુરુષ ચિદાત્મા અસ્તિ, જે ચૈતન્યમય આત્મા છે એને પુરુષ કહેવામાં આવે છે. જે ચૈતન્ય ગુણનો અધિષ્ઠાતા છે, સ્વામી છે, એ આત્મા છે. અહીંયા પુરુષ એટલે કોઈ સ્ત્રીલિંગ કે પુરુષલિંગ એવું નથી, એ કોઈ પણ આत्मा पुरुष है. राहुल भाई समझ सकते हैं, हिंदी में बोलना है, ठीक है. तो एक पुरुषार्थ की बात चलती है. पुरुषार्थ क्या चीज है? पुरुषार्थ माने पुरु माने उत्तम चेतना गुण, उसे पुरु कहा जाता है. पुरुषेते इति पुरुषः, जो उत्तम चेतना गुण का स्वामी है, अधिष्ठाता है, उसका सेवन करने वाला है, उसको पुरुष कहा जाता है. तो पुरुष चिदात्मा अस्ति ऐसा उसका निरूपण हुआ है. तो कि जो चिदात्मा है, शुद्धात्मा है, आत्मा है, उसका नाम पुरुष है. पुरुष का मतलब आत्मा, बराबर. और पुरुष अर्थ और अर्थ माने प्रयोजन, अर्थ प्रयोजन. तो अर्थ का प्रयोजन होता है और पुरुष का अर्थ आत्मा होता है. तो एक पुरुषार्थ शब्द कैसा बना है? पुरुष और अर्थ दो शब्द से बना हुआ है. तो पुरुष का मतलब क्या है? आत्मा. और अर्थ का मतलब क्या है? प्रयोजन. तो एक आत्मा का जो प्रयोजन है उसे पुरुषार्थ कहा जाता है. पुरुषार्थ का मतलब क्या है? आत्मा का प्रयोजन. आत्मा का प्रयोजन अनेक प्रकार का होता है, मगर उसका प्रयोजन को हम 4 प्रकार में बट सकते हैं. 4 प्रकार में उसका विभागीकरण हो सकता है, उसका क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से होता है. तो 4 प्रकार क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष. हमारा सभी प्रयोजन ये 4 में समा जाता है. तो ये 4 सबसे पहला क्या है? धर्म है, दूसरा अर्थ है, तीसरा काम है, और चौथा प्रयोजन क्या है? तो चौथा प्रयोजन मोक्ष का है. तो एक जीव का प्रयोजन ये 4 प्रकार का होता है. धर्म, धर्म का मतलब शुभ भाव है. धर्म माने वितरागी परिणति, सम्यक दर्शन रूपी धर्म वो चीज नहीं है. एक धर्म शुभ भाव को भी धर्म कहता है. अनिच्छक कयो अपरिग्रही ज्ञानी नहीं छे धर्म ने तेथी न परिग्रही धर्म नो ते धर्म नो नायक बने. समय साथी गाथा है. तो यहाँ धर्म का मतलब भाव, शुभ भाव है, पुण्य भाव है. तो धर्म जो हमारा जो शुभ भाव है उसे धर्म कहा जाता है. वितरागी भाव साथे संबंधित जो शुभ भाव है उसे व्यवहार से धर्म कहना पर यहाँ धर्म का मतलब शुभ भाव के तौर पर है. तो एक धर्म माने पुण्य भाव, शुभ भाव. एक पुण्य भाव उसे अर्थ माने जो धर्म, अर्थ माने जो पैसा, जो धन संपत्ति है, पैसा है, वो रुपया पैसा, उसे अर्थ कहा जाता है. एक और काम माने विषय को, और मोक्ष माने बंधन में से मुक्ति.
हमारा आत्मा की जो अनादिकाल से बंधन है, वो बंधन में से मुक्ति, उसे मोक्ष कहा जाता है। तो एक जो आत्मा का प्रयोजन, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन। पुरुषार्थ का मतलब शब्दार्थ के तौर पर क्या होता है? आत्मा का प्रयोजन, उसे पुरुषार्थ कहा जाता है। और आत्मा का प्रयोजन अनेक प्रकार का है। वो सभी प्रकार का प्रयोजन को हम क्लासिफिकेशन, उसका विभागीकरण 4 प्रकार से होता है। कहाँ हमें पुण्य का प्रयोजन होता है, कहाँ पैसा का प्रयोजन होता है, विषय भोग का प्रयोजन होता है, अथवा तो मोक्ष माने बंधन में से मुक्ति का प्रयोजन होता है। एक 4 प्रकार के प्रयोजन में से पहला 3 प्रकार का प्रयोजन है, उसे त्रिवर्ग कहा जाता है। उसका नाम क्या है? त्रिवर्ग। त्रिवर्ग ऐसे वो तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है और अविनाभावी है। एक हुए तो दूसरा होता ही है। हमें पुण्य का प्रयोजन है तो पुण्य से पैसा की उत्पत्ति होती है, पैसा से विषय भोग की प्राप्ति होती है। तो जिसे विषय भोग की इच्छा है तो उसे पैसा का भी प्रयोजन है, और पैसा की प्राप्ति पुण्य से भी होती है। तो ये तीनों एक साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे त्रिवर्ग कहा जाता है। और वो संसार का प्रयोजन है। हमें जो संसारी जीव होए उसे मोक्ष का प्रयोजन नहीं है, उसे संसार का प्रयोजन है। माता जी ऐसी कहती है कि आज जीव का प्रयोजन वास्तव में का संसारार्थी होते हैं अथवा मोक्षार्थी होते हैं। तो जिसे धर्म, अर्थ और काम का प्रयोजन है वो संसारार्थी है, और जिसे मात्र मोक्ष का प्रयोजन है, दूसरा कोई जस्ता नहीं है, तो वो मोक्षार्थी है। काम एक आत्मार्थनु बीजो नहीं मनरो, तो उसे मोक्षार्थी कहा जाता है। तो जिसे सिर्फ मोक्ष का ही प्रयोजन है, बंधन में से मुक्ति करना है, इसे दूसरी कोई चाह नहीं है, दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है, दूसरी कोई आवश्यकता नहीं है, उसे मोक्ष का, तो मोक्ष को अपवर्ग कहा जाता है। मोक्ष को अपवर्ग कहा जाता है। और ये त्रिवर्ग, अपवर्ग माने ये तीनों से अलग प्रकार का है। तो वास्तव में हम मोक्षार्थी कब बन सकते हैं? ये संसारार्थी नहीं है तो, और संसारार्थी है तो मोक्षार्थी नहीं है, मोक्षार्थी है तो हम संसारार्थी नहीं है। मगर भव्य जीव को मोक्ष की एक कुछ कम ज्यादा रुचि तो होती है, मगर हमारा मोक्ष का प्रयोजन बहुत कम है और संसार का प्रयोजन ज्यादा है। तो इसकी वजह से हम पैसा कमाने में, पुण्य की प्राप्ति करने में और विषय भोग के सेवन में हमारी प्रयत्न लगाते हैं, हमारा प्रयोजन उसमें ले। प्रयोजन माने रुचि, हमारी नेसेसिटी, हमारी आवश्यकता, तो उसे प्रयोजन कहा जाता है। और प्रयोजन के अनुसार हमारी वीर्य शक्ति काम करती है। आत्मा का जो आत्मा है ना, अनेकांश स्वरूपी है, कायम टिकता है, कायम पलटता है। उसका टिकना अस्तित्व गुण से है और उसका पलटना वीर्य गुण से है। तो आत्मा का जो वीर्य गुण है, वो वीर्य गुण उसके प्रयोजन के मुताबिक उसका प्रवर्तन होता है। हमें पैसा का प्रयोजन है तो हमारी शक्ति, वीर्य माने शक्ति, वीर्य स्वशक्ति इति अर्थ, आत्मा का जो ऊर्जा है, आत्मा का बल है, आत्मा की शक्ति है, तो वो वीर्य है। कोई भी कार्य है उसकी ऊर्जा से होता है। हमारी कार गैस से चलती है, एक इंजन कोयला से चलता है, तो कोई भी में उसकी एनर्जी चाहिए ना। तो आत्मा की जो एनर्जी है उसकी वीर्य शक्ति है, तो वीर्य शक्ति से उसका प्रवर्तन होता है।
तो वो निरंतर हर समय उसका प्रवर्तन तो चालू ही होता है, मगर उसका प्रवर्तन कैसे बनता है कि उसे एक पैसा का प्रयोजन है, पैसा की प्राप्ति में उसका प्रवर्तन चलता है, पुण्य की प्रयोजन है उसमें चलता है, विषय भोग, ये तीनों एक साथ जुड़ा हुआ है, एक है तो दूसरा दो होता ही है, अविनाभावी है। अविनाभावी किसे कहा जाता है? एक है तो दूसरा होता ही है। प्रियंका है, ज्योति बहन है, सरोज बहन है, तो तीनों साथ ही दिखने में आता है, एक है तो दूसरा दो होता ही है। तो ऐसे एक पैसा है तो पुण्य भी है, विषय भोग भी है, विषय भोग है तो पुण्य और पैसा, इस तीनों, इसलिए उसे त्रिवर्ग कहा जाता है। उसका कलर गुलाबी किया है, उसका केसरी किया है, तो एक त्रिवर्ग का प्रयोजन है मोक्ष। तो हमारा प्रयोजन अनादिकाल से संसार का होने से हमारा प्रवर्तन प्रयत्न उसी तरफ चलता है, इस तरफ नहीं चलता है। पुरुषार्थ स्वाधीन है, पुरुषार्थ सफल भी है, मगर हम पैसा कमाने का पुरुषार्थ करता है, पैसा नहीं मिलता है तो वो निष्फल हो गया ना, उसका नहीं, निष्फल नहीं हुआ है। वो बात हम फिर बाद में समझते हैं कि हमारा पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं जाता है, पुरुषार्थ की सफलता ही बनती है। कैसे बनती है वो हम देखते हैं। और इसके बाद एक पुरुषार्थ का जो 4 प्रकार है ना, आचार्य देव ने ऐसा कहा है, पद्मनंदी पंचवसंती का श्लोक है, उसमें ऐसा कहा है, पुरुषे तो चतुष्षु निश्चलतरो मोक्षं परं सत्सुखं शेषा तत्विपरीत धर्म कलिता येयाम मोक्षोरत तस्मात् तत्पद साधन त्वधरणो धर्मोऽपि नो सम्मत यो भोगादि निमित्तमेव स पुनः पापं बुधे मन्यते। उसका अर्थ ऐसा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ पैकी मोक्ष ही पुरुषार्थ एक बाधा रहित समीचीन सुख युक्त होने से, सदा स्थिर रहने वाला होने से मोक्ष के लिए वही उपादेय है। बाकी की 3 प्रकार के पुरुषार्थ उसके विपरीत अस्थिर स्वभाव वाला है, इसलिए मुमुक्षु जनों के लिए है। जो धर्म का पुरुषार्थ मोक्ष का साधन है तो कथनचित इष्ट है, मगर धर्म केवल भोगादि का कारण होने से विद्वानों उसे पापी मानते हैं। तो एक 3 प्रकार का पुरुषार्थ में वास्तव में तो मोक्ष ही उपादेय है और बाकी का 3 है माने छोड़ना योग्य है। अब देखो कि हमारा जो ये विषय है 5 समवाय में पुरुषार्थ, तो यहाँ पुरुषार्थ का मतलब हमें एक आत्मा का प्रयोजन के तौर पर नहीं समझना है। हमें पुरुषार्थ का मतलब यहाँ प्रकरण के अनुसार पुरुषार्थ का प्रयोजन अर्थ आत्मा की वीर्य शक्ति समझना है। आत्मा की जो वीर्य शक्ति है, वीर्य माने ऊर्जा, आत्मा की एनर्जी, आत्मा का बल, उससे आत्मा का सभी प्रवर्तन होता है। तो आत्मा की वीर्य शक्ति, उसका नाम पुरुषार्थ है। इसमें कैसा होता है कि हमारा जो आत्मा का परिणाम है ना, उसे शुभ भाव अथवा अशुभ भाव कहा जाता है। मन कसाई को शुभ भाव, तीव्र कसाई को अशुभ भाव। और उसके निमित्त से जो कर्म का बंधन होता है तो उसे पुण्य और पाप कर्म कहा जाता है। शुभ भाव से निमित्त से पुण्य कर्म का बंधन होता है, अशुभ भाव के निमित्त से पाप कर्म का बंधन होता है। मगर वो जो पाप कर्म का बंधन है वो अशुभ कर्म के निमित्त से होने से उसे भी अशुभ कर्म ऐसा कहा जाता है। पुण्य कर्म को शुभ कर्म ऐसा भी कहा जाता है। और इससे विपरीत कि जो आत्मा का भाव शुभ भाव है वो पुण्य बल का कारण होने से उसे पुण्य भाव ऐसा भी कहा जाता है।
तो उसमें कारण का, कार्य में कारण का और अथवा तो कारण में कार्य का उपचार हो सकता है। तो इसी प्रकार एक आत्मा की वीर्य शक्ति हमेशा आत्मा का प्रयोजन, प्रयोजन माने रुचि, आत्मा की आवश्यकता, आत्मा की जरूरियात, आत्मा की नेसेसिटी, उसके अनुसार उसके वीर्य शक्ति का प्रवर्तन होता है, होता रहता है। तो रुचि अनुयायी वीर्य, तो जैसी हमारी रुचि है उसके मुताबिक वीर्य शक्ति काम करती है। तो वो वीर्य शक्ति को पुरुषार्थ એટલે કે प्रयोजन के अनुसार, पुरुषार्थ माने आत्मा का प्रयोजन, आत्मा की रुचि, आत्मा का प्रयोजन के अनुसार वीर्य शक्ति का प्रवर्तन होने से वो वीर्य शक्ति को पुरुषार्थ कहने की पद्धति है। तो यहाँ प्रकरण के अनुसार पुरुषार्थ का मतलब हम क्या करेंगे? आत्मा की वीर्य शक्ति। आज समवाय में जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ क्या चीज है? आत्मा की वीर्य शक्ति है। ठीक है। और जो ये वीर्य शक्ति क्या चीज है उसकी हम बात समझ। आत्मा की जो वीर्य शक्ति है वो ही पुरुषार्थ। अभी जब सम्यक दर्शन होता है, ध्यान होता है, तो उसमें सम्यक दर्शन में अपना श्रद्धा गुण काम करता है। तो श्रद्धा गुण में क्योंकि जब पांचों समवाय वो ही द्रव्य में और वो ही जब कार्य होता है तभी उसके गुण के पांचों समवाय होते हैं। तभी वीर्य शक्ति अगर पुरुषार्थ होगी तब श्रद्धा गुण के लिए वीर्य शक्ति वो तो निमित्त बन जाएगी। तो उसमें पुरुषार्थ कहाँ, किसे पुरुषार्थ कहेंगे? वो वीर्य गुण को निमित्त कहेंगे या उसे पुरुषार्थ कहेंगे? सम्यक तो दर्शन ज्ञान बड़ वीर्य बहु वदता रहे, कलिमल रहे तो जे तीव जीवते वड़ ज्ञान ने अचिरे रहे। आत्मानु सम्यक दर्शन, आत्मानु सम्यक ज्ञान, आत्मानु सम्यक चरित्र, आत्माना બધા જ ગુણો सम्यक तो दर्शन ज्ञान बड़ वीर्य अहो वदता रहे। आत्माનું જે બળ છે, વીર્ય શક્તિ છે, એનાથી પ્રગટ થાય છે, એનાથી વૃદ્ધિ પામે છે, એનાથી એનું પ્રવર્તન પ્રવળ થાય છે। કલિમલ રહિત તે જીવ તે વર જ્ઞાનને અચીરે રહે અને કળીકાળના પ્રભાવના દોષથી મુક્ત થયેલો એવો જીવ વર જ્ઞાન એટલે ઉત્તમ જ્ઞાન, કેવળ જ્ઞાન, ક્ષાયી જ્ઞાન, તો એને અચીરે એટલે તુરત જ પ્રાપ્ત કરનારો હોય છે। તો आत्मा हमारा आत्मा का जो अस्तित्व है उसका टिकाऊपना है। आत्मा कायम टिक कर कायम पलटता है, अनेकांत स्वरूप है, बराबर है। तो उसका टिकना अस्तित्व गुण है, तो इसी प्रकार उसका पलटना वीर्य गुण है। तो आत्मा का हरेक गुण का प्रवर्तन, हरेक ऐसे तो गुण अभेद है, वास्तव में तो गुण भेद ही नहीं है, वस्तु अभेद है, मगर उसकी पर्याय में जिस प्रकार की कार्य होती है उसके मुताबिक उसको गुण कहा जाता है। कि आत्मा जानने का कार्य करता है, ज्ञान गुण है, श्रद्धा का कार्य करता है, दर्शन गुण है, स्थिरता का कार्य करता है, चारित्र गुण है, दुख सुख का कार्य करता है, सुख गुण है। तो आत्मा का जितना प्रकार का प्रवर्तन होता है ऐसे तो ऐसा उससे प्रकार, तो एक आत्मा में अनंत अनंत गुण है, बराबर। क्योंकि हर एक समय में हमारी कामगिरी अनंत प्रकार की होती है, तो जितने प्रकार की कामगिरी इतने प्रकार का गुण है। हमारे में अस्तित्व गुण है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अरूप है। वास्तव में तो एक आत्मा का एक ही कार्य होता है, मगर वो कार्य में अनेक प्रकार की विविधता है। तो उसी प्रकार उसका माध्यम स्वरूप गुण है। गुण का परिणाम नहीं है, गुण की पर्याय नहीं है, आत्मा की है, मगर वो गुण उसका साधन होता है। ले एक वास्तव में क्या चीज है? द्रव्य गुण पर्याय सभी अभेद है, एक रूप है। उसमें कोई गुण का मतलब ऐसा नहीं है कि श्रद्धा गुण कोई अलग है, वीर्य गुण कोई अलग है, चारित्र गुण कोई अलग है, सुख गुण कोई अलग है, ऐसी चीज नहीं है, सभी एक में की है। मगर आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है
और ये वीर्य शक्ति तो हर एक पदार्थ में है, ऐसे नहीं है सिर्फ आत्मा में ही है। हर एक पदार्थ में पुद्गल में पुद्गलिक वीर्य है, आत्मा में चैतन्य वीर्य है, मगर चैतन्य वीर्य को पुरुषार्थ कहने की पद्धति है। पुद्गल का वीर्य को पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ का मतलब आत्मा का प्रयोजन हुआ नहीं। तो એટલે वीर्य शक्ति का हम क्या भाई आप पुद्गल में वीर्य शक्ति है कि नहीं, तो उसमें भी है और आत्मा में भी है, पर आत्मा की वीर्य शक्ति को हम पुरुषार्थ कहने की पद्धति है, प्रणाली का है, परंपरा है। वास्तव में तो वो वीर्य शक्ति है, मगर ये श्रद्धा गुण का कार्य करे और वीर्य गुण का कार्य करे, दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। और निमित्त तो हमेशा पर पदार्थ का योगी होता है। अंतरंग एक दूसरे इससे क्या है, ज्ञान है और चारित्र है, वो दोनों जुड़े हुए हैं। वितरागता हो तो ही सर्वज्ञता होती है, बिना वितरागता सर्वज्ञता नहीं होती है। हर एक गुण एक सूत्र दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सम्यक दर्शन होने से सर्वगुणास्ते सम्यकत्व, श्रद्धा गुण शुद्ध होने से आत्मा का अनंत गुणों में यथासंभव आंशिक शुद्धता प्रकट होती है। तो क्या ऐसा कहा जाएगा कि श्रद्धा गुण दूसरे गुण के प्रवर्तन में निमित्त है? ऐसा नहीं है। निमित्त अंतरंग पदार्थ नहीं होता है, निमित्त हमेशा पर पदार्थ का योग होता है, अपने से अलग चीज होती है, अपने अंतरंग की खुद की चीज नहीं होती है। तो ये पुरुषार्थ है ना, वो तो उपादान कारण है, निश्चय कारण है, नियामक कारण है, निमित्त नहीं है। अब वीर्य शक्ति क्या है? द्रव्य स्वशक्ति विशेषो वीर्य, स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूपा वीर्य शक्ति। तो उसे वीर्य शक्ति कहा जाता है कि आत्मा का जो ऊर्जा है, आत्मा की एनर्जी है, आत्मा का बल है, उसका नाम वीर्य है। और वीर्य से ही आत्मा का परिणमन होता है, पलटना होता है। हमारा निरंतर पलटना चालू है। सिद्ध भगवान को भी है, हमारे संसारी को भी है। हर एक पदार्थ को अपना निरंतर एक के बाद एक जो अवस्थाएं बनी रहती है, वो वीर्य शक्ति, उसकी एनर्जी तो को होनी चाहिए, तो वो एनर्जी, उसका नाम वीर्य शक्ति है। वो स्वाभाविक है, कुदरती है, सहज है, नेचुरल है, कोई उसमें बाहर से गैस नहीं पुराना पड़ता है। अब क्या है कि वीर्य शक्ति हर एक पदार्थ में है, 6 द्रव्यों में है। सामान्य गुण है, सामान्य गुण विभाव धर्म से विलक्षण होता है। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सब क्या कहे? सामान्य गुण है, 6 द्रव्यों में है। अगुरु पड़े से कहीं नहीं। प्रश्न पूछो राहुल भाई, कहीं न समझ में आए ना तो पूछना। हाँ, तो ये जो वीर्य शक्ति है ना, वो हर एक पदार्थ में है, क्योंकि हर एक पदार्थ पलटता है ना। पुद्गल में पुद्गलिक वीर्य है और आत्मा में चैतन्य वीर्य है। चैतन्य वीर्य को हम पुरुषार्थ कहते हैं, पुद्गल वीर्य को पुरुषार्थ नहीं कह पाते हैं। मगर ये पुरुषार्थ का मतलब वीर्य समझना है। यहाँ जो पुरुषार्थ है ना, 5 समय में पुरुषार्थ, उसका मतलब वीर्य शक्ति है। वीर्य माने ऊर्जा है, बल है, स्वशक्ति विशेषो वीर्य। अब क्या है कि वीर्य शक्ति है ना, वो सभी द्रव्य में होती है। और हमें एक अंतराय करने में भी वीर्य होता है, वीर्यांतराय करना, बराबर नहीं? એટલે हमारा जो दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, वीर्यांतराय, अंतराय होता है ना, तो हमें दान देना है तो हमें कोई अंतराय हो है, बराबर नहीं? हमें घर में हमारे दान देना है,
मगर हमारी पत्नी मना करे कि नहीं, यहाँ सेंटर में दान नहीं देना है, हमें वहाँ दान देना है, तो अंतराय। मगर वास्तव में वो अंतराय नहीं करती है, हमारा कर्म होता है अंतराय, बराबर ने, उसकी गलती नहीं है, हमारा એટલે वो बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त हमारा अंतराय, એટલે हमारा कर्म काम है, कर्म पौद्गलिक कर्म है ऐसा अंतराय, बराबर ने। हमें तो दान में, लाभ में, भोग में, उपभोग में, वीर्य माने उत्साह, हमारा जो काम करने का उत्साह है ना, उसमें जो कमी आती है वो वीर्यांतराय है। मगर वो वीर्यांतराय ये पुरुषार्थ से अलग चीज है, क्योंकि ये अंतराय कर्म से उसमें बाधा है, आई ने, उसमें उणप आई, अवरोध आया, उसमें आवरण आया, उसमें कुछ विकृति आई, तो ये वीर्य शक्ति है ने, वो एक सामान्य शक्ति है, सभी में है, और हर एक सामान्य गुण विभाव धर्म से विलक्षण होता है। अस्तित्व गुण भी विलक्षण से विभाव धर्म से उसमें कोई आवरण, उणप, अधूरा, विकृति, मलिनता, अशुद्धता ऐसी चीज नहीं होती है। विशेष गुण में विभाव हो सकता है, पर सामान्य गुण में विभाव नहीं होता है। हमारा अस्तित्व है तो अस्तित्व में कभी आवरण, उणप, ओछप हो गए, कभी अस्तित्व ज्यादा होए, कभी अस्तित्व कम होए, कभी अस्तित्व में मलिनता आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व, जो प्रदेशत्व गुण में ऐसा होता है कि विभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो प्रदेशत्व गुण के जो हमारा आकार है, हमारा फिगर, वॉल्यूम, कद और आकार होता है, तो वो पट सापेक्ष होने से एक संसारी जीव को विभाव व्यंजन पर्याय कहता है। सिद्ध भगवान का भी आकार तो होता ही है, मगर उसे और निरपेक्ष होने से स्वभाव कहा जाता है। मगर प्रदेशत्व गुण का कार्य तो आकार का है, तो वो आकार स्वभाव रूप हो, विभाव रूप हो, वास्तव में तो प्रदेशत्व गुण का कार्य तो शुद्ध ही है, पूर्ण ही है। मगर एक सापेक्षपना होने से, एक दूसरे के साथ आकार जुड़ा हुआ होने से उसे विभाव कहा जाता है, और दूसरे से संबंध नहीं होने से उसे स्वभाव कहा जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ में भी ऐसा होता है कि परलक्षी पुरुषार्थ है तो विभाव, उल्टा पुरुषार्थ कहा जाता है, स्वलक्षी पुरुषार्थ है तो स्वभाव कहा जाता है। मगर पुरुषार्थ का प्रवर्तन तो शुद्ध बुद्ध पूर्ण ही है। पुरुषार्थ कभी अधूरा नहीं करता है, पुरुषार्थ में अशुद्धता भी नहीं होती है, पुरुषार्थ में अपूर्णता भी नहीं होता है, पुरुषार्थ तो निरंतर चालू ही रहता है। और पुरुषार्थ हमारा स्वभाव है, शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए हमारे वश में है, हमारी खुद की चीज है, हम इसका जैसा चाहे ऐसा इस्तेमाल कर पाते हैं, कर सकते हैं। मगर उसका लिमिटेशन ये स्वभाव निमित्त कालअवधि भवितव्य के हिसाब से होता भी है, वो हम देखते हैं। तो ये बात समझ में आती है? कोई प्रश्न है तो पूछना। अब क्या हमें समझना है? एक प्रश्न है। हाँ बोले। तो हम कल बोल रहे थे कि जो भी खामी है हमारे में वो हमारे पुरुषार्थ की खामी है। हाँ। मगर अभी हमने ऐसा बताया कि पुरुषार्थ में कभी कोई अशुद्धि या अपूर्णता नहीं होती है, तो फिर हम कैसे समझे कि तो फिर क्या खामी है? पुरुषार्थ हमारा वश में है, कंट्रोल में है, स्वाधीन है। मगर पुरुषार्थ का हम इस्तेमाल जैसा करना चाहे वैसा कर सकते हैं, कर पाते हैं। हमें हमारे ज्ञान का अक्षर है, बराबर। पुरुषार्थ का लिमिटेशन होता है कि जो हम अभी देखते हैं कि वो पुरुषार्थ कैसे काम करता है। मगर वो पुरुषार्थ हम व्यापार धंधा भी कर सकता है, तत्व का अभ्यास भी कर सकता है। मगर हम व्यापार धंधा में रुक जाते हैं और तत्व का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारा पुरुषार्थ की खामी है। हमें जो करना है वो कर पाते हैं, मगर
जो करने की चीज है हमारे काम की वो न करे और दूसरी करते हैं। जो एक बाबत है, हम कार्य तो निरंतर करते ही हैं, मगर कंस्ट्रक्टिव भी करते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी करते हैं, खंडनात्मक भी करते हैं, रचनात्मक भी करते हैं। ये बच्चे लोग हैं ना, तो तूफान भी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, स्कूल के कांच फोड़ देते हैं, बेंच तोड़ देते हैं, और उसको आप सही तौर पर लगाओ तो वृक्षारोपण करते हैं, साफ सफाई करते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी काम करते हैं, डिस्ट्रक्टिव उसका आप जैसा गाइडेंस करो ऐसा काम करते हैं। तो ऐसा हमारा पुरुषार्थ है ने, वो पुरुषार्थ अनादिकाल से डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, रचनात्मक कार्य नहीं करता है, खंडनात्मक करता है। सुबह में 5 बजे उठकर रोटी पकाई, सभी की तैयारी करी, क्या खंडनात्मक कार्य किया? मगर हमारा आत्महित के अलावा जो भी कार्य करते हैं वो सब मफत की मजूरी है। वास्तव में से रेती में से तेल पीलने का प्रयास है, उसमें से कोई फल नहीं मिलता है। तो जो एक 5 समय है उसमें एक पुरुषार्थ की मुख्यता है। पुरुषार्थ के अलावा एक भले स्वभाव है, निमित्त है, कालगति है, भवितव्य है, मगर सही कारण तो पुरुषार्थ ही हो। जो 5 कारणों के समुदाय से ही कारण की समर्थता बनती है। 5 कारण में से एक कारण न होवे तो भी कार्य नहीं बनता है। स्वभाव की निरर्थकता नहीं है, निमित्त की निरर्थकता नहीं है, मगर एक जो 5 इस कारण कार्य की व्यवस्था किस प्रकार है, उसमें पुरुषार्थ की मुख्यता किस प्रकार है, वो बात हमें समझनी चाहिए। भैया भगवती दास का दोहरा है, लगे न तीर कमान बाण कहूँ मार सके नहीं मीरा रे, तू संवार पुरुष बल अपना एक सुख अनंत तो तेरा है, निश्चय ध्यान धरहु प्रभु को जो टारे वो भीरा रे, भैया चेत धर्म निज अपना जो तारे भव नीरा रे, जो जो होसी वितराग ने सो सो होसी वीरा रे। इसमें क्या कहा है कि युद्ध के मैदान में दुश्मन को हराने के लिए एक लगे न तीर कमान बाण को मार सके नहीं, तो वो जो तीर है वो धनुष पर चढ़ाकर उस दुश्मन पर उसका प्रहार करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। धनुष बाण होने से काम नहीं चलता है, उसका इस सही इस्तेमाल करना चाहिए ना, तो उसका फल मिलता है। तो ऐसे एक तू समार पुरुष बल अपना सुख अनंत तो तेरा है। हमें आत्मिक अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति करना है तो उसका सही प्रयोग हमें करना चाहिए, पुरुषार्थ का सही इस्तेमाल करना चाहिए। पुरुषार्थ का प्रवर्तन शुद्ध है, पुरुषार्थ का प्रवर्तन पूर्ण है, पुरुषार्थ स्वाधीन है, मगर स्वाधीन होने पर जो एक बेंसी की तत्व चर्चा में एक चीज आती है कि भाई उसमें कोई ने ऐसा कहा कि भाई हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है, तो बेंसी ने उसका जवाब ऐसा दिया कि सम्यक दर्शन आपको जोता नहीं है, તમને सम्यक दर्शन જોતું નથી એટલે મળતું નથી। પૈસા આપણે જોઈએ છીએ અને પૈસાનો પુરુષાર્થ કરીએ પણ છીએ, પણ ઈ પૈસા મળવા કે ન મળવા પુરુષાર્થને આધીન નથી। તમે એમ કહેશો પુરુષાર્થ નિષ્ફળ ગયો। हमें इनके
हमारा पुरुषार्थ तो निष्फल हो जाता है। पैसा कमाने का पुरुषार्थ करता है, पैसा नहीं मिलता है। यहाँ के लोग को तो मिलता है, जरूरत से भी ज्यादा मिलता है, मगर एक कोई शरीर का रोग है वो मिटाना है, कोई दफे नहीं मिटता है, बराबर नहीं। तो हम एक कार्य करने का प्रयत्न करता है तो नहीं भी हो सकता है। तो वो बात कैसे है वो बात भी हम समझते हैं, मगर पहले हम पुरुषार्थ की मुख्यता क्या है वो बात पहले समझते हैं कि हमारी एक 5 समवाय में पुरुषार्थ की मुख्यता क्या है। जो हम एक ऐसे तो मुझे कोई ड्राइंग नहीं आता है, मगर एक हम पुरुषार्थ का एक डायग्राम बनाए। कोई आदमी है ना, वो काम करता है, बराबर में उसका हाथ पर हिलता है, ये जो आदमी है उसका जो कार्य होता है, ठीक है, मगर जो हमारा जो कोई कार्य होता है, हम चलते फिरते हैं, सब काम काज करते हैं, तो ये जो कार्य होता है तो हम सामान्य तौर पर कैसे समझते हैं कि हमारा हाथ पैर चलता है तो सब काम होता है, बिना हाथ पैर कैसे काम चलता है, बराबर। मगर वास्तव में देखा जाए न तो हमारा हृदय चलता है न तो काम होता है, बिना हृदय रुक जाए तो काम बंद हो जाता है। बोले हृदय दिखने में नहीं आता है, हृदय के स्थान पर पुरुषार्थ है। ये जो हृदय है ना, कैसे बोला जाता है, जो हमारा जो हार्ट है ना, हार्ट दबकता है तो सब काम होता है, मगर बाहर से क्या देखने में आता है, हाथ पग चलता है। तो जो ये हाथ पग चलता है ना, एक धारो के दाया हाथ है तो ये स्वभाव है, ये क्या चीज है, स्वभाव है। ये क्या चीज है, निमित्त है। स्वभाव है ने वो अंतरंग सहकारी कारण है। उसका मतलब क्या है, अंतरंग सहकारी कारण है। और जो निमित्त है वो बहिरंग सहकारी कारण है। ये जो पाँव है हमारा वो सहचरी है। हम जो कार्य हाथ से करते हैं साथ साथ में हमारा पाँव भी चलता है तो वो सहचरी है। तो उसमें जो भवितव्य है, नियति है, जिसे गुरुदेव क्रमबद्ध पर्याय भी कहते हैं, तो वो अंतरंग सहचरी है, सहचारी नहीं है, सहचरी। ये सहकारी है, ये सर। तो उसमें क्या है, भवितव्य है। और जो काललब्धि है वो बहिरंग सहचरी है। इसमें क्या हुआ कि कोई भी जो कार्य होता है वो हृदय से होता है, तो हृदय एक पुरुषार्थ है। तो ये जो हम कार्य करते हैं, एक हमारी आंख से ये कार्य दिखाई देता है, मगर ये कार्य का वास्तविक कारण क्या है, पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ के अलावा कोई दूसरा वास्तविक कार्य नहीं है। एक हाथ है वो सहकारी है,
पेड़ है वो सहचारी है, एक दाया हाथ एक अंतरंग सहकार्य कारण स्वभाव है, ये बाया हाथ एक बहिरंग सहकार्य कारण निमित्त है, और ये जो भवितव्य है वो सहचरी है, और काललब्धि है वो बहिरंग सहचरी है। तो इसी प्रकार का कार्य की कारण कार्य की व्यवस्था है। जो कार्य होता है वो पुरुषार्थ से ही होता है, क्योंकि उसमें क्या है कि ये जो कारण है ना, ये कारण में पुरुषार्थ है ने वो उसकी प्रमुखता है। बड़े ये पांचों कारणों है, मगर पांचों कारणों में जो निश्चित कारण है ना वो पुरुषार्थ है। निश्चित कारण किसे कहा जाता है कि जो चौकस वास्तविक सत्य हो और सिद्धि तौर पर का कारण उसे निश्चित कारण कहा जाता है। तो जो वास्तविक कारण है, सत्य कारण है, जो डायरेक्ट कारण है, डायरेक्ट अप्रोच करने वाला जो सही कारण है उसे निश्चित कारण कहा जाता है। तो वास्तव में एक कार्य का कारण एक ही होता है और वो पुरुषार्थ ही होता है। हमारा जो कोई परिणाम होता है वो निमित्त से नहीं होता है, स्वभाव से नहीं होता है, भवितव्य से नहीं होता है, काललब्धि से नहीं होता है, एकमात्र पुरुषार्थ से ही होता है। हमारा शरीर का जो भी कार्य होता है वो हार्ट से ही होता है, हृदय ही उसका चलाने वाली है। मगर हृदय रुक जाए, हृदय बंद हो जाए, कोई कार्य नहीं होता है। एक हाथ पेट को चलाने वाला भी हृदय ही होता है। सारा कार्य का संतुलन नियामक वो हृदय है। तो ऐसे एक कार्य का वास्तविक कारण, निश्चय कारण तो पुरुषार्थ ही होता है। पुरुषार्थ के अलावा दूसरा कोई कारण नहीं है। फिर एक उपादान कारण, जो आत्मा की निज शक्ति रूप उत्पादक सामग्री है उसे उपादान कारण कहा जाता है। उपादान कारण किसे कहा जाता है कि आत्मा की निज शक्ति रूप उत्पादक सामग्री, कार्य की जो उत्पादक सामग्री है, रॉ मटेरियल है, जिसमें से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे उत्पादक सामग्री कहा जाती है। बराबर है ना? हम रोटी बनाते हैं तो रोटी गेहूं में से बनती है, गेहूं का आटा है वो रोटी रूप परिणमता है। तो वो गेहूं का आटा है वो उत्पादक सामग्री है। एक गैस का चूल्हा है, वेलन है, एक कोई उत्पादक सामग्री नहीं है, वो रोटी रूप नहीं परिणमता है। तो एक कार्य की उत्पादक सामग्री क्या है कि स्वभाव नहीं है, निमित्त नहीं है, स्वभाव कार्य रूप नहीं परिणमता है, निमित्त नहीं परिणमता है, भवितव्य और काललब्धि नहीं। एक उत्पादक सामग्री पुरुषार्थी है। तीसरी बात नियामक कारण, कि जे कारण को अनुसार के नियम से कार्य की उत्पत्ति होवे उसे नियामक कारण कहा जाता है। पुरुषार्थ होवे तो कार्य नियम से होता ही है। सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करे और सम्यक दर्शन न होवे ऐसा कभी नहीं बनता है। चैतन्य को चैतन्य में से परिणमित हुई भावना, माने राग द्वेष में से नहीं उगेली भावना, ऐसी यथार्थ भावना होवे, वो भावना फलती है। वो भावना न फले तो जगत को, चौथ ब्रह्मांड को शून्य हो जाना पड़ता है, वस्तु का अभाव हो जाना पड़ता है, और वस्तु के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है। और ऐसा अनंता तीर्थंकर ने कहा है। वेद श्री के वचनामृत का 21 नंबर का बोल है कि हमारी चैतन्य के परिणाम के साथ कुदरत बंधी हुई है। हमें चैतन्य की जैसी भावना है वो भावना हमेशा फलती है नियम से, क्योंकि वस्तु का सिद्धांत ही ऐसा है, स्वभाव ही ऐसा है। तो एक जो कार्य करता है उसका नियामक कारण क्या है? पुरुषार्थ ही है। फिर बाद में
अब पुरुषार्थ स्वाधीन कारण है। स्वाधीन कारण किसे कहा जाता है कि जो अपने को अधीन है, अपनी चीज है, अपना स्वभाव है, उसे स्वाधीन कहा जाता है। तो अब पुरुषार्थ आत्मा की निज शक्ति है, वीर्य शक्ति है, जैसे ज्ञान शक्ति है, दर्शन शक्ति है, चारित्र शक्ति है, सुख शक्ति है, ऐसे वीर्य शक्ति है, हर एक द्रव्य में है। तो एक पुरुषार्थ अपनी निज शक्ति होने से अपना स्वभाव है और अपनी खुद की चीज है, अपने अधीन है, दूसरी चीज हमारे अधीन नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि उद्गल को भी वीर्य शक्ति है, बराबर। आत्मा को भी वीर्य शक्ति है, वैसे ही उद्गल को भी वीर्य शक्ति है। आत्मा को वीर्य शक्ति स्वाधीन है, उद्गल को वीर्य शक्ति स्वाधीन नहीं है ना, उसकी भी स्वाधीन है। तो फिर वो अपने आप खुद क्यों नहीं कर सकता? उद्गल अपने आप ही सब करता है। रोटी है ने, उसको भी चार अपने आप बन करके ये आटा ही खुद रोटी को बनाती है, प्रियंका नहीं बनाती है। વીર્ય જુદું છે, એ જુદું છે। આપણે અવગુણ લઘુ ગુણ હોય તો બે જાતના છે, એક સામાન્ય અવગુણ લઘુ ગુણ છે અને એક પ્રતિજીવી નામના ગોત્ર કર્મના અભાવથી અવગુણ લઘુ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે, એ પ્રતિજીવી ગુણ છે। એટલે એક નામના બે ગુણ હોઈ શકે એમ। એટલે ઈ જે અંતરાય વીર્યાંતરાય જુદી વસ્તુ છે અને આ વીર્ય શક્તિ જુદી વસ્તુ છે। तो तुम्हारा प्रश्न तो समझा? कहीं पूछो तो પછી બંનેની વીર્ય શક્તિમાં ડિફરન્સ શું? બંને એને સ્વાધીન છે। વીર્ય શક્તિમાં કોઈ ડિફરન્સ નહીં। જેવી જીવની જ વીર્ય શક્તિ છે એવી જ પૂતગલની છે। जैसी जीव की वीर्य शक्ति है ऐसी ही पूतगल की वीर्य शक्ति है। वीर्य शक्ति सामान्य है, हमारा अस्तित्व गुण है ऐसा ही पूतगल का अस्तित्व गुण है, हमारा वस्तुत्व गुण है ऐसा ही पूतगल का वस्तुत्व गुण है। तो हमारी वीर्य शक्ति है ऐसे ही पूतगल की वीर्य शक्ति है। और वीर्य शक्ति माने उसकी ऊर्जा है, उसके उसका परिणमन होता है, परिणमन पलटना होता है। आप जो बोल रहे हो हमारी मतलब आपके देह की कि आपके आत्मा की? हमारी आत्मा की, आत्मा की, आत्मा आत्मा की भी वीर्य शक्ति होती है हाँ। और पुतगल की भी वीर्य शक्ति होती पूतगल की भी होती है। है। अपन तो पुरुषार्थ करके कुछ भी आप बोले जैसा पैसा कमाना है तो हम लोग पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं और कमाते हैं। तो वीर्य शक्ति जब आप बोल रहे हो आत्मा की है और पुतगल की है, पुतगल डजंट मूव, उसमें क्या वीर्य शक्ति? तो नेचर के हिसाब से अपने आप उसको क्या बोलता है कि खत्म होता है, आप इसको दूसरा शुरू में वो परिवर्तन होता रहता है वक्त के साथ। पूतगल का परिवर्तन होता है ना? हाँ बराबर, परिवर्तन कंटिन्यूसली परिवर्तन होता है ना? एक कागज सफेद है तो पीला भी हो जाता है, तो उसमें भी निरंतर परिणमन होता है ना? तो परिणमन उसकी वीर्य शक्ति से होता है। उसकी वीर्य शक्ति नहीं, उसके निमित्त है उसके, क्योंकि वो वक्त के हिसाब से और उसके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है। अगर आपको उसको बहुत सारे तरीके हैं जिसमें बोलते कि बहुत सारे निर्जीव वस्तु है वो लाखों साल से ऐसी कैसी पड़ी हुई है क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो ऐसी कैसे उसका स्वभाव ऐसा कैसा ही अभी भी है। जैसे आप बोले हीरा है, हीरा डायमंड तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा है ना, परिवर्तन के बिना कोई चीज टकी नहीं सकती है। बिना परिवर्तन कोई चीज टिक नहीं पाती है, क्योंकि सत का स्वरूप उत्पाद में द्रव्यात्मक होता है। सत द्रव्य लक्षण उत्पाद में द्रव्ययुक्तम सत, तो सत का स्वरूप ही उत्पाद में द्रव्यात्मक होता है। तो द्रव्य माने टिकने के लिए उसका उत्पाद भाई होना ही चाहिए, बिना उत्पाद भाई वो द्रव्य नहीं हो सकता है। इसलिए उसका स्वरूप अनेकांत है, कायम टिककर कायम पलटना उसका नाम अनेकांत स्वरूप है। बस भाई तो एक एग्जाम्पल દઈને આ સમજાવો, એક્ઝામ્પલ લઈને કારણ કે આ સમજાશે। પણ દેખાતું નથી। ઘણા લોકોને કોઈ નથી આ ભાઈને કહે છે કે હીરું છે, હીરા કે સોનું, તમને એનો વ્યય થતો કોઈ લાખો વર્ષો સુધી દેખાતું નથી, એમ કહે છે કે
तो सिद्ध भगवान में क्या दिखाई देता है? सिद्ध भगवान जैसा ही तैसा ही रहता है। हमारा भगवान का प्रतिमा है जैसा तैसा है सेंटर में, तो उसमें क्या पलटना है? वो तो जैसा है तैसा है। तो ऐसा नहीं, उसमें भी पलटना है। बिना पलटना वो टिक नहीं पाती। इसमें भी होता है। तो इसके लिए हमें द्रव्य का बंधारण समझना पड़ेगा। रात शाम को आना पड़ेगा। एक सी रहती है, एक के बाद नेक्स्ट पर्याय सेम नहीं सेम प्रीवियस पर्याय। उत्पाद व द्रव्य का अविनाभावीपना है, ये लंबा विषय है। एक अकेला उत्पाद नहीं होता है, अकेला व्यय नहीं होता है, अकेला द्रव्य भी नहीं होता है। द्रव्य उत्पाद और व्यय के बिना नहीं होता है। आप कहना ये चाहते हैं ना कि चेंजेस हम परसीव ना कर पाए, मगर चेंजेस तो उसमें कंटिन्यूअसली होते रहते हैं। इट्स नॉट, इट्स आवर इनएबिलिटी टू परसीव इट। जो एक मतलब आप બધા લોકો અમે સ્કૂલમાં પણ ભણેલું કે એવરીથિંગ ઇઝ નોટ ફિક્સ. અમે ચેન્જ તો થાય છે. આપણે પણ છે તો નાનાથી મોટા થયા, but something is changing in the body, so we are growing. Particles are dying, particles are again form થાય છે, die થાય છે. એટલા માટે આપણે મોટા પણ થાય છે. Everything is changing. yes, That's true, બરાબર. but તમે કે પૂતગલમાં પણ ચેન્જ થાય છે, but તેનું નિમિત્તને માટે ચેન્જ થાય છે આ લોકો. They don't do their own. उसमें चेंज होने की शक्ति है, इसलिए चेंज होने की शक्ति है। जैसे मैंगो है, राइट? मैंगो घास के अंदर रखते हैं तो मैंगो होती है, पकती है, मगर अगर तुम रेत रख दोगे तो रेत नहीं पकेगी, क्योंकि रेत में वो शक्ति नहीं है पकने की। तो रेत की, मैंगो की पकने की शक्ति होती है तो पकती है। हाँ, तो निमित्त होता है, तो निमित्त नहीं काम नहीं करता है, निमित्त काम नहीं करता है, उसकी ऊर्जा से काम होता है। और निमित्त तो वो निमित्त के निमित्त और पदार्थ का योग है। निमित्त क्या कहता है? वो कार्य की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, वो कैटालिस्ट के माफिक होता है, उद्दीपक होता है, कैटालिस्ट होता है। वो निमित्त कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। जो कदाच થોડું અઘરું લાગે થોડું, પણ હવે આપણે સમજવાની વગર તો હાલે જ નહીં ને, બરાબર ને? થોડું કામ તમે થોડી કંઈક કથા વાર્તા કરો, કંઈક દાખલા બધું આપો કે તો કંઈક આ તો ઠીક પડે ને. આવું મગજમારી હારું, આમાં શું આપણે સમજવાનું, શું પામવાનું, આમાં શું પૈસા મળે, આમાં શું થાય આપણું. પણ જો આ બધું જ આપણે જે પુરુષાર્થ કરીએ છીએ ને, આપણો પુરુષાર્થ આપણે પૈસા કમાવાનો કરીએ છીએ. આપણે ગઈકાલે વાત કરી ને કે ये बनारसी देह दुर्लभ जान अजान अकाळत खोए. આપણે ન કરવા જેવા કાર્યમાં આપણી શક્તિનો વ્યય કરીએ છીએ. हम अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं. अपनी खुद की पहचान वीर्य शक्ति का मतलब स्वरूप निवर्तन सामर्थ्य रूप का वीर्य शक्ति. अपना स्वरूप का निवर्तन, स्वरूप का फोड़ने में, स्वरूप का सामर्थ्य की प्रकट करने के बजाय उसका इस्तेमाल हम गलत ढंग से पड़ रूप में करते हैं. तो हम अपनी शक्ति का व्यय करते हैं, हमें उसका सही इस्तेमाल नहीं करते. हम उसकी कंस्ट्रक्टिव नहीं करते, डिस्ट्रक्टिव करते, खंडनात्मक करते, रचनात्मक नहीं करते. तो शक्ति तो हमारी है, शक्ति में तो कोई ऐसी चीज नहीं है, मगर वो शक्ति का किस प्रकार इस्तेमाल करना, वो बात हमें समझनी है. अब जो ये अंतरंग कारण है, बहिरंग कारण है, तो इसमें क्या हुआ कि स्वाधीन तो हमारा एकमात्र पुरुषार्थ. हमने, आपको ऐसा प्रश्न होगा कि स्वभाव भी पराधीन है, बराबर ना? कोई बोलते नहीं है, प्रेरित कहीं प्रश्न नहीं पूछता है कि ये स्वभाव भी, आपको स्वभाव को भी पराधीन कहा दिया, तो वो भी पराधीन है. तो स्वभाव तो अपने में होता है. अरे तो प्रश्न पूछ ભવ્યત્વ હોય એ स्वभाव, भव्यत्व है वो स्वभाव है, तो ही पुरुषार्थ, जो भव्य जीव पुरुषार्थ करेगा तो ही वो उसको प्राप्त होगा. यहाँ भव्य तो એટલે આપણે ભવ્ય જેવું ભવ્ય અભવ્યની વાત નથી. આ ભવિત્ર છે, ભાવમાં જે જીવ ભવ્ય હોય એ જ પોતાનું કલ્યાણ કરી શકે સ્વભાવમાં. તો એ જો અભવ્ય હોય તો એ ગમે તેટલો પુરુષાર્થ કરે, ક્યારે બી સમય દર્શન નહીં કરી શકે. એ વાત આપણે સમજીએ છીએ.
તો આપણે આ જ વસ્તુ છે ને કોમ્પ્યુટરના ઉદાહરણથી સમજીએ. સુભાષભાઈ હા, 1 વાગે બ્રેક કરી દેજો. 1 વાગે બ્રેક કરો. એક પાણીનો ગ્લાસ લેતો આવો. હવે શું નહીં પીધું તો પણ હવે જો પીધું તો મેં પણ હવે જો પરાગભાઈ આપણે ટોપિક આ પૂરો કરી લેવા થોડું પછી બ્રેક કરીએ. એટલે આજે આ ડાયાગ્રામ છે ને એના બદલે બીજો આપણે કોમ્પ્યુટરનો ડાયાગ્રામ જોઈએ. જો આપણે બધા લેપટોપ થી તો જાણીતા છીએ, બરાબર? હિન્દી સોરી, હિન્દી. जो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है. ये हेलो जो आपने हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन है, बराबर है? हमारा एक पुरुषार्थ कैसे प्रवर्तन करता है वो हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे तो हर एक पदार्थ कायम टिककर कायम पलटता है. उसका जो परिणाम है ना वो निरंतर चालू रहता है. कोई भी पदार्थ है, जैसे कि हमारा आत्मा है, तो हमारा आत्मा की जो प्रवर्तन है उसकी हर एक समय का प्रवर्तन तो निरंतर चलता रहता है. तो हमारी कोई एक अवस्था है, धरो कि 5 नंबर की अवस्था है, बराबर, और ये 6 नंबर की अवस्था है. जो एक कारण कार्य है ना उसमें पूर्वोत्तर पर्याय कारण होती है और पीछे की पर्याय कार्य होती है. इसी कारण कार्य में समय भेद बनता है. तो ऐसा एक पूर्व पर्याय कारण होती है और बाद की पर्याय कार्य होती है. तो 5 नंबर की पर्याय को हम कारण कहें और जो 6 नंबर की पर्याय है उसका नाम कार्य होगा. तो ऐसे कारण कार्य की व्यवस्था बनती है. ठीक है? तो जो हमारा जो कारण है उसमें जो सहकारी कारण है उसका नाम स्वभाव है. अंतरंग सहकारी कारण जो हमारी अंदर में है. स्वभाव किसे कहा जाता है? जो ये 5 प्रकार का कारण पर्याय रूप है, त्रिकाली द्रव्य रूप नहीं है. और जो कार्य होता है वो भी पर्याय रूप होता है, वो भी द्रव्य रूप नहीं होता है, त्रिकाली द्रव्य रूप नहीं होता है. ठीक है? तो ये जो कारण होता है, तो हमारे में जो कारण होता है स्वभाव. तो स्वभाव जो है तो हमारे में वर्तमान में कर्म के क्षयोपशम के अधीन जो स्वभाव की प्रगटता है, स्वभाव 2 प्रकार के होते हैं, उपयोगात्मक और लब्ध्यात्मक. जैसे हम वर्तमान में इंजीनियर है मगर हमारे में डॉक्टर बनने की शक्ति लब्ध रूप है. हमें डॉक्टर में एडमिशन मिलता होगा तो हम डॉक्टर भी बन पाते हैं. तो ऐसे हमारे जो कर्म के क्षयोपशम से ज्ञानावनी कर्म के क्षयोपशम से
हमें ज्ञान की शक्ति है, दर्शन की है, मोहनीय से चारित्र की है। तो इसी प्रकार कर्म के क्षरोक्षम के अधीन हमें जो शक्ति की प्राप्ति होती है उसका नाम स्वभाव है। तो हमें वर्तमान में हमें स्वभाव में हम देखें तो हमारे स्वभाव में हम आत्महित का भी काम कर सके इसी स्वभाव की गुंजाइश है। हमें स्वरूप की पहचान करने की ताकत है। और हम जो व्यापार धंधा का कारोबार करते हैं तो वो तो अनादिकाल से वो उसकी भी सामर्थ्य है, दोनों प्रकार की है। मगर जो आत्मा की शक्ति है ना वो लब्ध रूप है, डोरमेंट्री है। और जो एक व्यापार धंधा की शक्ति है ना वो प्रकट है। हम एक धंधा व्यापार का कारोबार करते हैं, दुकान में ताकवा तोला रखा है और एक दुकान में तो ये हमारा उपयोगात्मक है और ये आत्मा की बात लब्ध्यात्मक है। दोनों प्रकार का स्वभाव है, ठीक है। और निमित्त, तो निमित्त में भी हमें व्यापार धंधा करना है तो उसका निमित्त हमारा कारोबार, पैसा, ये सब है, बराबर ना। और हमें जो आत्मा का कार्य करना है तो उसके मुताबिक उसका निमित्त भी है। हमें इस शास्त्र का स्वाध्याय करना है तो उसकी भी उपलब्धि है, देव गुरु की उपलब्धि है, ठीक है। तो ये स्वभाव है, अंतरंग सहकारी कारण, ये निमित्त है। हमारा जो कोई कंप्यूटर होता है ना तो कंप्यूटर हमारा कैसे काम करता है कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फिट किया होता है वो खुल सकता है। पर आपने बोला कि भाई हमारे कंप्यूटर में कॉरल ड्रॉ नहीं है, वो काम नहीं बनेगा, बराबर। तो हमारे कंप्यूटर में पावर पॉइंट है, हमारे कंप्यूटर में एक पेज मेकर है, हमारे कंप्यूटर में वर्ड है। जो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में है तो वो उसका खुल सकता है, वो कार्य होता है। तो हमारे स्वभाव में जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है उसका नाम स्वभाव। तो हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव के मुताबिक हम कार्य कर पाएंगे। हमारा में स्वभाव नहीं है वो कार्य नहीं करेगा, उसमें हमारा पुरुषार्थ इस्तेमाल नहीं बनेगा। चैतन्य रूप हम सब है तो हमारा चैतन्य स्वभाव के मुताबिक हम काम करेगा। हमारा आत्मा रोटी नहीं बनेगा और गेहूं का आटा जानने देखने का काम नहीं करेगा क्योंकि उसमें उसका स्वभाव नहीं है। भौगोलिक पदार्थ सुख दुख का जानने देखने का काम नहीं कर पाएगा। और हम चैतन्य पदार्थ है, वो चैतन्य पदार्थ ये चेत कुर्सी नहीं बन पाएगा, उसमें ऐसी शक्ति नहीं है। वो स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, एक उपयोगात्मक होता है, एक लब्धोयात्मक होता है। तो हमारा कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है ना वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक खुले रहते हैं, एक साथ 2-3 प्रोग्राम खुला होता है, उपयोगात्मक होता है, और दूसरा प्रोग्राम लब्ध्यात्मक होता है। बोले उसका कभी हमें इस्तेमाल नहीं किया है मगर उसमें हमारे कंप्यूटर में वो प्रोग्राम है। पावर पॉइंट का हमें कभी इस्तेमाल नहीं किया है मगर वो कंप्यूटर में वो प्रोग्राम थे, बराबर नहीं, हमने कभी खोला नहीं है मगर है खरा। तो वो प्रोग्राम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। बिना सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम नहीं खुल पाता है, बराबर नहीं। ये सॉफ्टवेयर के स्थान पर निमित्त कारण है, बहिरंग कारण निमित्त, अंतरंग सहकारी कारण स्वभाव। वो जो प्रोग्राम खुलता है वो उसके क्रम के मुताबिक खुलता है, बराबर नहीं। कंप्यूटर का स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर उसका आइकॉन आता है, ऑल प्रोग्राम में जाना पड़ता है, फिर वहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, फिर वो खुल पाता है। उसका एक के बाद एक उसके तो उसका एक
क्रम होता है, वो उसका नाम भवितव्य है। भगवान की वाणी के मुताबिक जो होता है वही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो उसका नाम क्या है? भवितव्य है, या ओम भवितव्य का है। और जो कार्य जिस समय होता है वो उसकी काल लगती है। एक काल लगती माने एक हमारी घड़ी, हमें घड़ी का एक काल लगती है, ऐसा समझ। तो जो ये सभी हमारा कंप्यूटर है, तो 5 नंबर की पर्याय है, तो 5 नंबर की अवस्था फिर बाद 6 नंबर की होती है। तो 5 नंबर में स्वभाव भी है, आत्मा की पहचान करने की भी योग्यता है, व्यापार धंधे की भी योग्यता है, लौकिक कार्य की भी, उसके अनुरूप निमित्त की भी उपस्थिति है। बराबर है। वास्तव में का भवितव्य और काल लब्धि तो कोई चीज ही नहीं है। जो कार्य होता है वही भवितव्य है, और जिस समय में होता है वो उसकी काल लब्धि है। मगर महत्ता किसकी है? ये इंपॉर्टेंस किसका है कि हम जो कंप्यूटर की क्लिक है, माउस है, वो जहां क्लिक करे वो चीज खुलती है। वो क्लिक हमारा पुरुषार्थ है। हम यहां क्लिक करें, माउस कैसे हो सकता है? तो हमें अपना कंप्यूटर का भी पता नहीं है क्या है। तो एक यहाँ हम क्लिक करें तो ये प्रोग्राम खुलेगा, सम्यक दर्शन होगा, और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ करेगा। जो कार्य होता है उस कार्य का अंश पूर्व पर्याय में होता है। कारण अनुविधानी कार्याणि, कारण में से कार्य होता है। बराबर। पूर्व पर्याय मिथ्यात्व की है और दूसरी पर्याय में सम्यक दर्शन भी होता है। मगर सम्यक दर्शन उस समय डोरमेट्री है, लब्ध रूप है, करण लब्धि का अंतिम अंश होता है, फिर वो सम्यकत्व होता है। ले हमारे अनेक प्रकार के कार्य मौजूद है, तो वहां जहां हम क्लिक करें ना वो खुल पाता है। हमें तत्व का अभ्यास करना है तो वो काम कर सकता है, बाजार में घूमना है तो वो काम कर सकता है, हमें चाय पीना है तो वो काम कर सकता है, खाने को जाना है तो वो काम कर सकता है, हम हर एक काम कर सकता है, मगर वो हमारे हाथ में है। मगर वो काम कैसे होगा कि स्वभाव में उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। बिना स्वभाव में नहीं है, कंप्यूटर में वो प्रोग्राम नहीं है तो नहीं खुलेगा। तो हमारे स्वभाव में वर्तमान में आत्महित की योग्यता है, ये दूसरे असंगनी प्राणी में नहीं है। हमारे स्वभाव में सम्यक दर्शन की मौजूदगी है, करने की योग्यता, क्षमता। भले हम इंजीनियर है मगर डॉक्टर होने की योग्यता हमारे में थी। तो ऐसे हम भले लौकिक कार्य में परफेक्ट है, काबिल है, निष्णात है, मगर आत्मा की शक्ति में भी निष्णात होने की योग्यता है। शक्ति रूप है, व्यक्ति रूप नहीं है, ले प्रगट रूप नहीं है। कंप्यूटर में उसका इस्तेमाल नहीं है, मगर उसका फीडबैक है, वो प्रोग्राम हमने डाला हुआ है। बराबर। और उसके अनुरूप निमित्त भी है। निमित्त की भी निरर्थकता नहीं है, उसकी भी आवश्यकता होती है, तो निमित्त की भी उपलब्धि है। और काल लब्धि क्या चीज है, भवितव्य क्या चीज है कि ये स्वभाव है अंतरंग सहकारी है, निमित्त है वो बहिरंग सहकारी है, और ये सहचरी है, साथ साथ रहने वाला है। तो भगवान के ज्ञान के मुताबिक जो कार्य होता है वो भवितव्य है, और वो कार्य जिस समय होता है उसकी काल लब्धि होती है। तो ये पांचों कारण है, मगर वास्तविक कारण क्या है? एक कंप्यूटर की क्लिक है, हमारा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ होने पर ही कार्य होता है, बिना पुरुषार्थ कोई कार्य होता नहीं। मगर इतना सही है कि पुरुषार्थ का लिमिटेशन स्वभाव निमित्त के मुताबिक इस विचारों के मुताबिक होता है कि हमारे में स्वभाव नहीं है। जो चीज स्वभाव माने कर्म के क्षयोपशम के मुताबिक हमारे में
लब्ध्यात्मक अथवा उपयोगात्मक जो चीज नहीं है वो काम हम नहीं कर पाते। हम अभी सम्यक दर्शन कर पाते, हम अभी सम्यक दर्शन भी नहीं करते हैं। हमें सभी उसकी प्रोसेस में से पसार होना चाहिए। आटा है तो उसका पहला गेहूं में से आटा होता है, आटा में से उसका पिंडा बनता है, पिंडा में से उसका गोइना बनता है, उसमें से उसकी रोटी बनती है, उसमें से पकती है, तो सभी प्रोसेस में हो जाता है। वर्तमान में हमें केवल ज्ञान करना है तो केवल ज्ञान हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान के पहले की जो भूमिका है ना मुनि दशा, वो हमारे में मौजूद नहीं है। वो स्वभाव में योग्यता, स्वभाव में उसकी वो कंप्यूटर में वो प्रोग्राम अभी डाला नहीं गया है। जो चीज है वो तो सम्यक दशा में करना है, तो सम्यक दर्शन का प्रोग्राम है, केवल ज्ञान का नहीं है। इस काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता है, मगर वो सम्यक दर्शन में हमारा पुरुषार्थ काम करना चाहिए। वहाँ क्लिक हमें उसमें उसका क्लिक का अप्लाई करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। वो प्रयोग न करे तो वो काम नहीं बनेगा। प्रारब्ध શું કામ કરે? प्रारब्ध भी निमित्त છે, નિમિત્ત છે। હવે આપણે છે ને આ પુરુષાર્થ સ્વભાવ નિમિત્ત કાલલબ્ધિ ભવિત્ય બધાની પણ એક એક પછી વાત કરશે। રમેશભાઈનો એલેથી ક્વેશ્ચન છે, બેનશ્રીએ કીધું છે વચનામૃતમાં કે પ્રબળ ભાવનાથી તમારા પુરુષાર્થને વેગ મળે, તો ભાવના છે એ પુરુષાર્થ ઉપર ઉદ્દીપકનું કાર્ય કરે કે ન કરે? એ જવાબ પછી રાખજો।